Breaking news of the day. I'm Maudhinder. My friends, let me read for you some important five news. Okay, the very first news is that Trump, Mr. Trump, joined the office and he threatened immediately to 20,000 illegally detained Indians living in America in detention camps would be flashed out, would be flashed out from American soil within very limited days. So in that reference, Indian government said that yes, I'm going to get them out of American soil. Okay, with respect. The first thing first. Second thing, when Mr. Trump joined the office, Indian markets, stock market, I mean, started downfall. Okay, so because you know people are extracting money, investors are extracting money, and they are going to invest into the American market. And the confidence in the American market, okay, deterring actually the investors from Indian or developing countries. Okay, so there is hope in America right now. So because these actually Sensex is driven by the perceptions. Okay, these are the perceptions market. Okay, where is the perception? Where they can get money? Okay, what kind of policy is going to have that will bring them money? That money they follow. Okay, they calculate the risk and assessment, and they invest according to that. That's why the Indian stock market is dropped 1,235 points down. Okay, the people. That's as a result, there could be a repercussions on our foreign exchange as well as the Indian rupee too, because a lot of Indian rupee is losing the value. So now we will see that what kind of things is going to happen. But Mr. Trump, with respect to Trump, I'm talking about November 1st, and he said that I'm going to impose 100% tariff, 100% tariff on BRICS nations if they try to circumvent the non-dollar. Okay, circumvent the dollar and follow the non-dollar currency transaction in the BRICS groupings. Okay, so he threatened 100% tariff. He is saying since election campaign. Second thing is the Mr. Trump also said that he is going to strip out the citizenship rights given by birth. Okay, so there is a possibility that many Indians can lose the citizenship there. Okay, there is a perception, and I will share with you in my success videos with details what kind of and how things are unfolding, what would be the repercussions, how without training I can't tell you little complete detail. But yes, as per the news is concerned, there could be speculation that there would be some degree of so pardoned also Mr. Trump also pardoned 6 January the Capitol riots case victims 1500 they all were free right now. And third component is second component is Mr. C or Putin reiterated their close ties at the international relations. Third component is my news is third undocumented migrants in United States. Okay. Fourth component is the High Court actually court ordered seizure of M.F. Hussain painting. M.F. Hussain is my mm, a top class painter. Uh, what is row with that? What are the dispute why courts ordered to seizure of this painting? That's the question mark. We will look at it. So let me share with you. There is a crackdown going on the moist. Okay.
because Home Ministry have pledged they will flash out completely, eradicate the moist. Okay, so security forces have launched strikes. हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्राइक्स लॉन्च की है, ठीक है, टू मॉइस्ट जो है माओवादी जिसको कहते हैं उनको कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर चल रहा है, हर दिन 10-5 लोग मारे जा रहे हैं, हर दिन मतलब हर दिन, ठीक है। आज भी 14 लोगों को मार दिया गया, ठीक है। मैंने बारहा कहा है कि आप सरेंडर कर दें, हमारे पास सरेंडर की पॉलिसीज बराबर है। अननेसेसरी सिटीजन्स को मारना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर रहे तो अब सॉरी टू से दिस, आपने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को मारे हैं नहीं, तो अब यू हैव नो राइट टू लिव। ओके, देयर इज ए कंट्रोवर्सी। हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट लाउड्स दोज हु गिव स्टेटमेंट्स बिफोर एसआईटी। एसआईटी गठित की गई थी केरला इंडस्ट्री के अंदर, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ना वुमेन्स और वर्कर्स के साथ थे ना मिसबिहेवियर, बाकी सारी चीजें आपके सामने आई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेक्सुअल अब्यूज वगैरह वगैरह, हम आपको काम देंगे तो आप हमारे लिए ये करें वो करें, नहीं, बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आप सभी जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है ना केरला की, तो ये सारी बातें हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, पैसे मुद्दत है, नहीं, बाकी चीजें देखनी है। Cannot wait forever. Delhi High Court asked police to respond to bail play on Omar Khalid शारजील। मैंने आपको बताया था कि इस लुंडे को क्यों जेल में डाला हुआ है ना, तो मैं भी उसको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के नहीं, हम आप ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। 4-4 साल 4-5 साल से उसको तुमने जेल में डाला हुआ है, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं क्या बात बनती है, लेकिन डिले टैक्सेस भी होती है, सरकार उसको डिले कर रही है जानबूझ करके, नहीं। Gandhi was a true Hindu, chanting name of Rama till his last breath। कर्नाटक सीएम साहब ने कहा है कि गांधी जी जो है वो ट्रू हिंदू थे, है ना, ट्रू हिंदू थे। बाकी वो ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रू ह्यूमन थे वो, है ना। गांधी जी को हिंदू के कलर में पेंट कर देना ये भी एक अच्छी चीज तो नहीं है। गांधी इज आइकॉन ऑफ ह्यूमैनिटी, आप उसे केवल हिंदू में ऐड करके और नहीं, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ SC ST और SC वाले लोग उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, है ना। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी भगवान है तो भी वो गलत कर रहे हैं। वो मैन जो है वो मैन ऑफ क्वालिटी है, रादर देन कि आप केवल और केवल उनको क्लेम करते हैं वो हमारे हैं। वो सबके हैं, उन्होंने जो वैल्यूज दी हैं, बाकी चीजें दी हैं, बाकी इक्वालिटी कॉन्सेप्ट, बाकी सारी चीजें समाज को बदलने की कॉन्सेप्ट जो है वो केवल SC के लिए नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह हर कोई अपने अपना काम कर रहा है, तो जो मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं अपना बहुत बोल देता हूँ, है ना। न्यूज में पढ़ रहा हूँ तो कुछ क्रक्स जो है मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में है प्रोग्राम। अब जो अभी RK कर कॉलेज रेप केस में मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें उस डेथ पेनल्टी के लिए लोग हाई कोर्ट में चले गए, इसको डेथ पेनल्टी दी जाए, है ना। ये भी एक अजीब सी चीज है। फिर से माइनर का रेप केस में 2 लोग गिरफ्तार हो गए, है ना। अब ये भी बदतमीजियां हैं, मैं क्या कहूँ। साउथ सदर्न 24 परगना है वहां पे, वेस्ट बंगाल में, 8 साल की बच्ची के साथ उन्होंने रेप कर दिया, नहीं। अब आप समझे बात को कि क्या कहना है। हर एक जगह केस फेक चल रही, फांसी की डिमांड हो रही, बावजूद इसके कि दूसरा वहां पे नहीं, उसको डर नहीं लग रहा कि क्या मामले बन जाएंगे। इससे एक बहुत बात पता चल रही है कि लोग
पनिशमेंट से नहीं आता। नहीं, सामाजिक सुधार की भी जरूरत है। वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डील इंडस वाटर ट्रेटी dispute between India and Pakistan. Since Pakistan always claims that he goes into the arbitration court, है ना, हर पैसा एक मैकेनिज्म बना हुआ है। जब 1960 में इसका ट्रीटी साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये एक न्यूट्रल बॉडी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ही बीच में रख करके, मिडिल मैन के तौर पर रख करके ही उसने नेगोशिएशंस कराए थे, जिसमें इन 20% इंडिया को वाटर यूज कर, 80% वाटर पाकिस्तान को दिया गया। नहीं, 3 रिवर इंडिया यूज करेगा, 3 रिवर पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए। लेकिन अब पाकिस्तान बार बार भाग जाता है आर्बिट्रेशन कोर्ट में। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम कॉम्पिटेंट इनफ हैं और इस मैटर को डील करने के लिए। आप बार बार उसको डिले और आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान कभी टेबल पे नहीं आता और उछल कूद करता है बेवजह, है ना। टाइज मस्ट बी viewed फ्रॉम a लॉन्ग टर्म perspective, बीजिंग ने कहा है इंडिया से। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके ही टाइज बिल्डअप किया जाए। मिस्टर जयशंकर ने भी बड़ी रिसेंटली कमेंट किया था कि हमें ढंग से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ही इस रिलेशनशिप को देखना चाहिए, है ना। तो इस रेफरेंस में चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी रिआइटरेट किया है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके ही, ये एक बहुत तगड़ा टर्म है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, है ना। चार्जिंग पे लगा दें क्योंकि फोन चार्ज नहीं बंद हो जाएगा। एक सेकंड ना। हाँ, ये जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इससे एक डिटरेंस का भी काम ये कर सकता है, क्योंकि इंडिया क्वाड के ग्रुपिंग से बाकी सारे रिलेशनशिप में जब जा रहा है वेस्टर्न ऑर्बिट में, तो चाइना उसको रिमाइंड करा रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तुम्हारा तो फ्यूचर हमारे बॉर्डर पर है और तुम चले जा रहे हैं कहीं और। तो इसको आप रीओरिएंट रीलुक करें, है ना, अपनी पॉलिसीज को, कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हम एक साथ रह करके क्लोज कोऑपरेशन सीख करके नहीं चीजों को कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन वो इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है कि वो पाकिस्तान को कितना आर्म्स एंड एम्युनिशन, आर्सेनल, मरीन शिप, फ्लाइट फाइटर प्लेन्स, इस पूरे इक्वेशन, सबकॉन्टिनेंट की इक्वेशन को चेंज कर रहा है। वो ये बात नहीं ध्यान दे रहा है, लेकिन वो हमें रिमाइंड करा रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होना चाहिए, है ना, while engaging with चाइना। ठीक है, तो ये भी एक लेक्चर देने का काम है और खुद लोग अपने आप को नहीं सुधारते। ठीक है, वो अपने पर उसको नहीं लगाते, दूसरों को समझाते हैं। इंडिया फ्रांस डिस्कस सिविल न्यूक्लियर इशूज अहेड ऑफ पीएम विजिट टू पेरिस। अभी जो हमारे 3 इंस्टीट्यूशंस को यूएस ने सैंक्शन लिस्ट से बाहर किया, जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को भी है और इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च और हमारा जो टॉप इंस्टीट्यूशन है रिसर्च का, है ना, उसके ऊपर सैंक्शन थे। यूएस के जो लिस्ट है, तो 3 इंस्टीट्यूशंस पे सैंक्शन थी। अभी उन्होंने जब उसको रिलीज किया हुआ है, तो अब जाकर के वेस्टर्न कंट्रीज जो है इंडिया के साथ एंगेज कर रही, इवन फ्रांस, है ना। फ्रांस 1998 में जरूर इंडिया के 99 में फ्रेंडशिप साइन किया था, है ना, इंडिया के साथ। लेकिन वो उसके बाद से उसने कोई ज्यादा मुश्किल पैदा नहीं की थी, है ना, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और सैंक्शंस पर भी। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न ऑर्बिट में रहता है, G7 मेंबर है, तो डेफिनेटली वहाँ के इश्यूज को जो होते हैं उनको जरूर वो फॉलो करता है। लेकिन ये मामला ये भी है कि अ, फ्रांस ने इंडिया पर कोई खास प्रेशर नहीं बनाया है ना। और लेकिन हाँ, उसने कुछ किया भी नहीं है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं सारे रशियन हैं,
है ना? तो अब जाकर के ये टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन बाकी सारे मटेरियल रिसोर्सेस ने जो नीडेड होते हैं, यूरेनियम वगैरह वगैरह, तो सारे कुछ सैंक्शन होने की वजह से सारा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाकी टेक्नोलॉजी लेना देना सब वेस्टर्न कंट्रीज से बैन हो गया, है ना? लेकिन अब उन्होंने लिफ्ट अप किया है, तो मैं देखी हूँ एंगेजमेंट बढ़े कुछ, है ना? मिस्टर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब भी अभी सेक्रेटरी जनरल ऑफ फ्रांस मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप लेडी जो है एनाई मारिया डिस्कॉट्स से अभी वो मिल रहे हैं, आज के आज और अभी के अभी। ठीक है, तो मैं भी कॉपरेशन चीजें बढ़े आगे चल के, है ना? तो अब क्या अनफोल्ड होता है ये कंप्लीट डिटेल की बात है, मैं आगे देखूंगा। ठीक है, मैरीटाइम सर्विलांस करने के लिए साथ में तैयार है इंडियन ओशन रीजन में इंडिया और फ्रांस। अब मैं तो कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ कि जर्मनी ने भी एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था, मैं 2 ढाई महीने 3 महीना पहले, जब मिस्टर चार्ल्स ओलाफ सोल यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ है ना विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और इंडिया के साथ फ्यूचर किस तरह लिंकअप किया जाए, और यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल है वो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है हाउ टू एंगेज विद इंडिया। ठीक है, एफटीए नेगोशिएशंस इज आल्सो अंडरवे, under discussion. Therefore, could be a effective, you know, uh, result on that. It is under the considerations. शफली खान, अरे यार कौन है ये? Court orders seizure of M.F. Hussain's paintings from Delhi Art Gallery. DRDO holds key test for hypersonic missile. Hypersonic missile का टेस्ट किया गया है. Scramjet, the key of hypersonic vehicle is scramjet engines. Okay, which are air-breathing engines capable of sustaining combustion of supersonic speeds. DRDO said that. Trump effectively pulls US out of global corporate tax deal. जो एक नया मामला है, हाँ कर क्यों ना करें, 15% लगाने की बात हो रही थी, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स है ना, यूनिफॉर्म करने की बात चल रही थी, लेकिन अब मिस्टर ट्रम्प आ गया, जब कह रहा है कि हम हर जगह टैरिफ इम्पोज करेंगे, हर आदमी पर, हर नेशन पर, तो क्यों 15% पे मानेगा जी, है ना? तो बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है ये, पूरा तरीके से वो बेवकूफ़ी थी, इस पर इतना मैंने आर्टिकल लिख दिया। 2-3 साल पहले इससे बड़ी डिबेट होती थी, मिस्टर बाइडेन जब था, है ना? मैं मुझे याद है करीब 1 साल पहले खूब ज़्यादा डिबेट थी कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया जाए 15% टैक्सेस के लिए, प्लस ये वो, है ना, डबल अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस, है ना, ये सब कुछ बेकार सी बातें थी, वो अननेसेसरी हमको ना पढ़ना पड़ गया नहीं। कुछ कभी कभी आते हैं, एक सवाल ये है ना, यही लोग हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम को गवर्न कर, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो नए नए टर्म्स क्वाइन करते हैं, और ये सारे ड्रिवन होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, है ना, और हम सभी को समझना पड़ना पड़ता है। अब हमारे उसमें सेइंग है नहीं, ठीक है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, ना कोई प्रपोज कर सकते हैं, केवल एक्सेप्टेंस होता है ना, जो वो कह रहे हैं वो हमें मानना है, हम कुछ बता नहीं सकते, टॉप डाउन अप्रोच होता है ना, डाउन टू टॉप अप्रोच यहाँ पे नहीं चलता। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। एयर टैक्सीज के लिए भी ट्रायल शुरू करने वाले हैं हम, है ना? सेंटर हैज बिगन टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रायल साइट्स फॉर एयर टैक्सीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ये भी एक नया ड्रामा है। सोने का हिरन खोजने में लोग लगे हुए हैं। Mr. Xi and Putin reiterated their close ties after Trump swearing in. मिस्टर ट्रम्प ने अभी जो बात किया है, हम्म, और अपने स्पीच में कहा है कि ये चीजें होने वाली है, तो उस रेफरेंस में मिस्टर पुतिन जो है वो मिस्टर सी से
टेलीफोनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बातचीत किए, है ना। अब क्या चीज अनफोल्ड हुई ये देखने की बात है। मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, मैं इस पे एक अलग वीडियो करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रंप पेरिस एग्रीमेंट से निकलना चाहता है। श्रीलंका मीडिया स्पॉटलाइट्स डिस्टेंस बैलेंसिंग एक्ट विद बीजिंग एंड न्यू दिल्ली, ये भी एक समस्या है। श्रीलंका को पहले ही उसने हंट कर लिया है, डेथ ट्रैप में फंसा करके वो बाहर ही नहीं जा सकता, उसको उसकी बात माननी ही है। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारी चीजें पढ़ दी हैं आज के लिए, और यूएस की अभी आग बुझी नहीं है जो वहां पे लगी है लॉस एंजलिस में। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 20 मिनट लग गए यार।